Welcome class, I am Durgesh Kumar Pandey. Class, today I am going to explain a chapter in class 11 and the name of this chapter is Judiciary. First of all class, we know that the government have a three organ, executive, legislature and judiciary. So today we are going to discuss about one of the organ, judiciary. And the task of judiciary is to settle the dispute between between individual and the state, and between two states, or sometime the state versus national government. So the main task of the judiciary is provide justice to settle the disputes. But there are some another function of judiciary, like judiciary protect the fundamental rights of citizens, judiciary protect the constitution, judiciary also interpreted the constitution, and it is the responsibility of judiciary to interpret the various various article which are available in our Indian constitution, and also ensure the democratic tradition in our country. These are the tasks of our government class. Class, today we are also discussing about what is judiciary and rights. These are the today's topic we are going to discuss here. What is judiciary and rights? देखो class, the main task of our judiciary is to protect the fundamental rights of citizens. And suppose anyone is violated the fundamental rights of citizens, so individual have a right to go in a court. If the matter is the violation of fundamental rights, so individual have a right to go in the court against this, and direct in the Supreme Court or direct in the High Court. And the court was issue a writ like habeas corpus, mandamus, quo warranto, certiorari and prohibition. See, these are the some writs issued by the Supreme Court when the matter is the violation of fundamental rights. Class, in our article 32 is saying that every person have a right to go in a court if the matter is violation of the fundamental rights. So article 32 is saying about the constitutional remedies. This is the important fundamental rights of citizens, and Dr. Bhimrao Ambedkar is also saying these rights as a heart and soul of our Indian constitution. It provides the remedy if the violation of fundamental rights are come into access. So anyone individual can go in the court for relaxation class. So these rights, fundamental rights, are so important that they are separately listed in our constitution, and the Supreme Court is the authority who is taking the responsibility to the protection of fundamental rights of citizens. And class, similarly, Article 13 provides the power to the judiciary. Ki suppose Parliament was making a law, and this law is violate the fundamental rights of citizens, so such a law will be announced null and void by the judiciary, and this power
was given to judiciary by the Article 13 कि if Parliament was making any law and this law is violate the fundamental rights of citizens, तो Article 13 provide the power to judiciary. The judiciary have a power to announce null and void of this law which made by the Parliament against the fundamental rights of citizens. So the Supreme Court can declare concern of law as unconstitutional and therefore non-operational according to Article 13 class. And class, Article 32 is saying कि if anyone can feel कि their fundamental rights is violated, तो person is going in the court, वो कोर्ट में जा सकता है and got the remedies. और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट्स है क्लास. तो यू कैन गो डायरेक्ट इन द कोर्ट, और जो कोर्ट होगी वो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हबीज कॉर्पस, मैंडामस, सेचुररी, कॉ वेरेंगो और प्रोहिबिशन जैसे रिट्स इश्यू कर सकती है क्लास. एंड सिमिलरली आर्टिकल 226, this is also High Court also have the power to issue such writ according to Article 32. Article 226. 220 according to Article 26. High Court have also a power to issue a writ if the matter is violation of the fundamental rights of citizens. So similarly, Supreme Court can issue the writ according to Article 32. आर्टिकल 32 लोगों के फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए सिटीजन कैन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 सिटीजन्स विल गो इन अ कोर्ट. सिटीजन कोर्ट जा सकते हैं क्लास. तो क्लास अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226 High Court also issue a writ like habeas corpus, mandamus, quo warranto if the matter is the violation of fundamental rights of the citizen. And Supreme Court can issue the writs according to Article 32 if the complaint is registered by the individual against the fundamental rights. The Supreme Court has also issued the writs. So class there is another things about ki rights ki the Supreme Court as the protector of fundamental rights of citizens on one hand and the interpreter of the constitution on other hand. यानी सुप्रीम कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन व्याख्या भी कर सकती है क्लास है. तो the second of the two way mentioned above involve judicial review class. देखो व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू क्लास कि जो सुप्रीम कोर्ट का देखो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे जो इम्पॉर्टेंट पावर है वो क्या है? जुडिशियल रिव्यू है. ठीक है. जुडिशियल रिव्यू मीन्स क्लास द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी लॉ. मतलब किसी भी लॉ की जो है संवैधानिकता की जांच करना. ठीक है.
तो जुडिशियल रिव्यू मीन्स द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी लॉ, यानी संविधान किसी भी लॉ की संवैधानिकता की जांच करना। If a court arrive at the conclusion that the law is inconsistent with the provision of the constitution, यदि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये पाता है कि जो भी लॉ है वो इनकंसिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो सच अ लॉ इज डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और ऐसे लॉ को सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है, इन एप्लीकेबल भी अनाउंस कर सकती है। द टर्म जुडिशियल रिव्यू इज नाउ हियर मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे संविधान में जुडिशियल रिव्यू मेंशन किया गया है। देखो, इंडिया हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन अ लॉ दैट गोज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स, इम्प्लिसिटली गिव द सुप्रीम कोर्ट द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। मतलब दो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है क्लास, एंड सुप्रीम कोर्ट किसी भी लॉ की पड़ताल कर सकता है। सपोज इफ़ एनी लॉ, कोई भी ऐसा लॉ है जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, तो ऐसे लॉ को सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, नल एंड वॉयलेट अनाउंस कर सकता है क्लास। यानी कोई भी ऐसा लॉ है जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है क्लास, तो सुप्रीम कोर्ट अनाउंस कि दिस अकॉर्डिंग टू जुडिशियल रिव्यू उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर सकता है क्लास। बिसाइड एज वी शा द सेक्शन ऑफ जुरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ फेडरल रिलेशन 2, द सुप्रीम कोर्ट कैन यूज द रिव्यू पावर इफ द लॉ इज इनकंसिस्टेंस विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर लेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, संविधान ने केंद्र, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में जो शक्तियों का जो बंटवारा किया है, अगर उसके अगेंस्ट भी कोई फैसले आता है, उसके उस प्रिंसिपल के अगेंस्ट भी कोई चीज़ें हैं, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट इनकंसिस्टेंस यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनाउंस कर सकती है। सपोज द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक अ लॉ which according to the some state concern to a subject of the state list। सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया और वो जो सब्जेक्ट था वो राज्य के अंतर्गत आता था, राज्य का विषय था कि राज्य उस पर कानून बनाए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके ऊपर लॉ बना दिया। तो अब ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ओरिजिनल जुरिडिक्शंस के तहत। तो ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट हैव अ पावर टू डिक्लेयर सच अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कोई भी ऐसा प्रोविज़न को स्टेट जो है कैंसिल कर सकता है, क्योंकि ये वायलेट करता है फंडामेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को, इसलिए सुप्रीम कोर्ट उसको इनवैलिड अनाउंस कर देगा। द रिव्यू पावर एक्सटेंड टू द लॉ पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर 2। देखो, जो रिव्यू पावर है वो राज्य सरकारों के द्वारा पारित किए कानून पे भी लागू होता है क्लास। तो इस तरह से रिट पावर एंड रिव्यू पावर दोनों ही शक्तियां मिलकर के को काफ़ी पावरफुल बना देती हैं क्लास। रिट एंड रिव्यू, रिट एंड रिव्यू पावर बोथ मेक द जुडिशरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन क्लास। बहुत ही मजबूत संस्था के रूप में जुडिशरी बन जाती है क्लास। द रिव्यू पावर मीन्स द जुडिशरी कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ पास बाय द लेजिस्लेचर। जो रिव्यू का मतलब, रिव्यू पावर का मतलब ये है क्लास की सुप्रीम कोर्ट जो किसी भी संविधान के किसी भी हिस्से को इंटरप्रेटेट कर सकती है, उसकी व्याख्या कर सकती है, एंड जो पार्लियामेंट ने अगर जो लॉ पास किया है तो उसको भी, उसकी भी पड़ताल कर सकती है। ठीक है, पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है
पार्लियामेंट ने जो लॉ पास किया है उसको भी, उसकी भी व्याख्या जो है सुप्रीम कोर्ट कर सकती है क्लास। तो many people think that this feature enable the judiciary to protect the constitution effectively and also protect the rights of citizens। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट लोगों के राइट्स को भी प्रोटेक्ट कर पा रही है, लोग संविधान को भी प्रोटेक्ट कर पा रही है। द प्रैक्टिस ऑफ entertaining appeals have further added the power of judiciary in protecting the rights of citizens। और जो पील पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू भी न्यायपालिका की शक्तियाँ बढ़ी हैं। अब वो न्यायपालिका लोगों के अधिकारों को और अच्छे से प्रोटेक्ट कर पा रही है क्लास। जैसे आपने अभी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पढ़ा होगा, तो राइट्स प्रोहिबिट्स फोर्स लेबर, ट्रेड इन द ह्यूमन फ्लैश एंड प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन हजार्ड्स जॉब। ठीक है, तो दीज आर राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, ये आपको जो है ह्यूमन फ्लैश को ट्रेड करने से रोकती है। ठीक है, फोर्स लेबर के अगेंस्ट है। ठीक है, उस पर प्रतिबंध लगाती है। और चिल्ड्रंस जो चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड्स को हैजार्ड जॉब में जाने से रोकती है क्लास। तो बट द क्वेश्चन इज हाउ कुड दीज व्हाट राइट्स वेर वायलेटेड अप्रोच टू द कोर्ट्स थ्रू पील एंड जुडिशियल एक्टिविटीज़ मेड इट पॉसिबल फॉर कोर्ट टू कंसिडर दीज वायलेशन। अब पील के माध्यम से और जुडिशियल एक्टिविटीज़ के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट यहाँ इन बातों की भी सुनवाई कर सकती है। दस द कोर्ट कंसिडर अ होल सेट ऑफ केसेस, जैसे द ब्लाइंडिंग ऑफ जेल इमेड बाय द पुलिस, इन ह्यूमन वर्किंग कंडीशन ऑफ स्टोन क्वेरीज, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चिल्ड्रंस एंड सो ऑन। तो इस तरह से बहुत सारे मामलों को अब सुप्रीम कोर्ट देख सकती है इस पील और जुडिशियल एक्टिविटीज़ के आ जाने की वजह से। तो दिस ट्रेंड्स हैड मेड द राइट्स रियली मीनिंगफुल फॉर द पुअर एंड डिसएडवांटेज सेक्शन। जो गरीब या डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनकी बेहतरी के लिए वर्क हो पाएगा। तो इस तरह से पील एंड जुडिशियल एक्टिविटीज मेड इट पॉसिबल फॉर द कोर्ट टू कंसिडर दीज वायलेशन। और बहुत सारे जो मामले हैं अब कोर्ट वहाँ तक अपनी अप्रोच बना सकता है क्लास, लाइक इन द केस ऑफ इनह्यूमन कंडीशन, वर्किंग कंडीशन ऑफ स्टोन क्वेरीज, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन एसेट्रा। Class, our next topic is Parliament and judiciary। Class, we know that in our constitution there is a clear-cut division of power between of the government between executive, legislature and judiciary। Executive have a work कि parliament have a work to make the law। parliament का काम है law बनाना, यानी legislature यानी parliament both are same thing। तो legislature मेक द लॉ, लेजिस्लेशन उसका काम है। एंड एग्जीक्यूटिव जो होती है एग्जीक्यूट करती है, उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव का है क्लास। एंड जो गवर्नमेंट की थर्ड ऑर्गन है लेजिस्लेचर, वो ये चेक करती है कि भाई पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। और
वो ये भी देखती है कि सुप्रीम कोर्ट की जो एग्जीक्यूटिव जो वर्क कर रही है वो उस लॉ के अकॉर्डिंग काम कर रही है कि नहीं। तो इस तरह से हमारे जो सिस्टम है उसमें गवर्नमेंट की पावर को बांटा गया है और 3 ऑर्गन में, अब तीनों 3 ऑर्गन सबके वर्क डिफाइन है। कोई किसी के कार्यों में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता। बट जो हमारी जुडिशरी है वो अपने हदें पार कर रही है, लाइक ए जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू। और नाउ न्यू थिंग इज कमिंग, जुडिशियल ओवररीच, यानी जो काम एग्जीक्यूटिव का है, जो काम पार्लियामेंट का है, आजकल वो काम हमारी जुडिशरी करने लगी है। इसी को बोलते हैं क्लास जुडिशियल ओवररीच, यानी जब जुडिशियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो जुडिशियल ओवररीच में कन्वर्ट हो जाता है क्लास। तो क्लास पार्लियामेंट जो भी लॉ बना रही है उसके कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की जो वैलिडिटी है उसकी जांच जो है हमारी जुडिशरी करती है क्लास। एंड नो कि हमारे यहाँ ये भी कोशिश की जा रही है कि जो पावर ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर हैं उसको भी कोर्ट के दायरे में लाया जाए क्लास। और आजकल जो है सुप्रीम कोर्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन, जो न्याय के जो एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क हैं वो भी देख रही है क्लास। जैसे गिविंग डायरेक्शन टू एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को डायरेक्शन दे करके, जैसे सीबीआई है उसने डायरेक्शन दिया है कि वो ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करे हवाला केस में। इसके अलावा नरसिम्हा राव केस में या इलीगल अलॉटमेंट ऑफ द पेट्रोल पंप, इन सभी केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया है सीबीआई को कि वो जांच करे, इन्वेस्टिगेशन करे। इसके अलावा ये सारे एग्जाम्पल जो है जुडिशियल एक्टिविटीज़म के हैं, यानी कि जो काम एग्जीक्यूटिव का था वो काम अब जुडिशरी करने लगी है क्लास। और हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पावर का साफ साफ बंटवारा है, चेक बैलेंस सिस्टम है ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी के सबके अपने काम है, ठीक है, क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर है। इसके बाद चेक एंड बैलेंस का भी रास्ता अपनाया गया है कि कोई भी ऑर्गन एक्सेस न करे। बट जो हमारी जुडिशरी जो है ओवररीच के माध्यम से जुडिशरी जो है वो काम करने लगी है, जो पार्लियामेंट का काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है। तो इस तरह से जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहा है। और न्यायपालिका का कहना है कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ की जुडिशरी की जिम्मेदारी है कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे, और वो एग्जीक्यूटिव के काम को करने लग रही है, लेजिस्लेचर के काम को करने लग रही है क्लास। तो दिस थिंग डाइल्यूट द सेपरेशन ऑफ पावर इन आवर कंट्री क्लास। आप लोग जानते हो इससे पहले पार्लियामेंट ने कोशिश किया कि बहुत सारे पब्लिक वेलफेयर के काम करने के लिए लोगों की प्रॉपर्टी लेनी पड़ती थी। तो गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू ऐसे लॉ बनाए जिससे लोगों के वेलफेयर के लिए काम हो सके। बट इसकी वजह से लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता था एंड पीपल को गो इन द कोर्ट। और यू नो हियर अबाउट द केशवानंद भारती केस, जो केरला वर्सेस यूनियन जो केरला सरकार वर्सेस केशवानंद भारती केस था, जिसमें कोर्ट ने निर्णय दिया कि देयर इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और पार्लियामेंट उस बेसिक स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट नहीं कर सकती। यानी पार्लियामेंट को संविधान में जो बदलाव करने की शक्ति है असीमित नहीं है।
पार्लियामेंट को जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बदलाव करने की शक्तियाँ दी गई हैं वो सीमित है, क्लासेस वो लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड पावर नहीं है। और न्यायपालिका को ये पावर होगी कि वो तय करे कि संविधान का कौन सा हिस्सा ऐसा है जिसको हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर बोलेंगे।